Okay, then let's start for the classical problem of synchronization. So already we have seen most of the things. So today we are going to see some classical problems of the synchronizations. So basically, when we need to perform the synchronization, that is the question, right? So if you have more than one process and those process wants to access one common resource, right? So at that time we need to perform the synchronization. So that common resource is nothing but the critical section, right? So now how we are going to resolve these problems? By using Peterson's problems, Peterson's algorithm, semaphore, mutex, right? Then hardware synchronization things. So we have seen this all the solutions for the synchronization. Fine. So what are the classical problems of the synchronization? The first one is what? Bounded buffer or producer and consumer problem. ठीक है? The first one is a producer और consumer और उसे हम क्या कहते हैं? Bounded buffer भी कहा गया. ठीक है? This is the one. And then we'll have the reader writer problem, and third one is a dining philosopher problem. These are the three classical synchronization problems. Okay, fine. So out of these three, today we are going to see the bounded buffer or the producer consumer. ठीक है? So this one. So what we are expecting in this bounded buffer producer consumer, the name itself will indicate, right? There is something is going to be produced and someone is going to be consumed, right? So now, and then in the technical things we can call it as a bounded buffer. It means what? There is one buffer in which someone is going to put some data and someone is going to read that data. So that is nothing but the bounded buffer. So let's see. Now we'll have this one buffer. Okay. So on this buffer, someone is going to write some data. Fine. And there is a one more person who is going to simply read this data. Otherwise, what we can call it as someone is there who is going to produce some product. ठीक है? कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है. So let's say is going to produce some item. ठीक है? Is going to produce some items. So now वो item जो प्रोड्यूस कर रहा है, so someone is going to consume. Fine. So simply देखो, if you take the example like at home, our mom is going to cook something for us, right? So that is nothing but the produce, and we are going to eat that particular thing, food. So that is consume. ठीक है? So the thing is what? Why we need to perform this? कि producer is going to produce something and consumer is going to consume something. So why we need the synchronization then? Right? Let's consider कि प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूस करते ही जा रहा है और कंज्यूमर वहां पे कंज्यूम नहीं कर रहा है. He is not going to consume something. ये एक सिनेरियो हो गया. एंड देन
producer is not going to produce anything and consumer is wants to consume something, but that buffer is or that particular tray is empty, तो उस टाइम पे कैसे करेंगे हम? ठीक है, सो ये प्रॉब्लम्स आते हैं. मीन्स व्हाट? Simply if you consider this one is a producer buffer, so that buffer is either it's a full or empty. These are the two status, right? Either this buffer is full or empty. So now when the buffer gets full, at that time only consumer is going to consume, right? When buffer is full, then only consumer consume, right? This is the one scenario. And another one is what? When buffer is empty, then only consumer producer should produce the item. Fine. These are the two important conditions. We need to check this one. So what is the problem? If buffer is empty and consumer wants to consume, so वहाँ पे क्या होता है? So at that time वेस्ट होते जाएगा, right? And another thing, producer is going to produce, he is going to produce something and is going to put that particular item in the buffer, ठीक है? And the buffer is already full and still he is going to put some item into that buffer. तो चलेगा क्या? The existing value is going to be replaced, right? सो ये प्रॉब्लम है उसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में. हमने और एक एग्जांपल लिया था, कौन सा वाला? लाइक देयर इज वन कंस्ट्रक्शन साइट है, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है? उस बिल्डिंग में कैसे किया था हम? क्या बोला था हमने? इन दिस व्हाइल बिल्डिंग दिस बिल्डिंग, सो देयर विल द सो मेनी वर्कर्स, राइट? बहुत सारे वर्कर्स होते हैं. तो यहाँ पे वो वर्कर्स कैसे काम करते हैं? पुरानी मूवीज में देखा होगा आपने, राइट? कि ये जो वर्कर्स हैं वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं, बहुत सारे वर्कर्स. और वहाँ पे कैसे होता है? दे आर गोइंग टू, एक बंदा रहेगा वहाँ पे, जो ब्रिक्स रहते हैं वो ब्रिक्स पास करते रहता है, एक से एक, एक से एक, एक से एक, इन दिस वे, राइट? तो लाइक से दिस पर्टिकुलर दिस पर्सन, ये जो बंदा है, इज गोइंग टू टेक दिस ब्रिक्स. यहाँ पे बहुत सारे ब्रिक्स पड़े हुए हैं, तो वो क्या कर रहा है? वो सारे उठा रहा है, ठीक है? वो उठा के दे रहा है. तो क्या करेगा? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हिल टेक दिस वन, ये ले लेगा पर्टिकुलर एक ब्रिक, ठीक है? तो ये क्या करता है? यहाँ से ये आगे पास कर देता है, राइट? देन यहाँ से वो आगे यहाँ पे पास करता है, देन यहाँ से यहाँ पे पास करता है, देन यहाँ से यहाँ पे, देन नेक्स्ट इन दिस वे, राइट? सो व्हाट इफ दिस पर्सन इज ऑलरेडी होल्डिंग सम आइटम्स इन हिज हैंड? तो ये बंदा इसको और एक ब्रिक्स को दे सकता है क्या? नहीं, बिकॉज ऑलरेडी ही इज बिजी, राइट? उसके दोनों हैंड्स बिजी है, तो ये नया वाला आइटम्स को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, राइट? देन ही नीड टू वेट, राइट? और लेट्स से नाउ दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू परफॉर्म द फास्टेस्ट वर्क. बहुत फास्ट काम कर रहा है, ये जल्दी जल्दी से आगे दे देता है, ठीक है? और ये वाला बंदा एकदम स्लोली काम करता है. तो क्या होने वाला है? ये बंदा हमेशा वेट करते बैठेगा ना. इसको क्या बोलेगा? अरे भाई थोड़ा जल्दी करना, ऐसे बोलेगा वो, राइट? तो इन दोनों में प्रोसेसिंग स्पीड अगर ठीक तरह से नहीं रहा,
So at that time we are getting the synchronization problem, right? तो ये सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया था, वी आर गोइंग टू यूज द सेमाफोर, राइट? सो दिस वन इज नथिंग बट वन, ऐसे रियल लाइफ का एग्जांपल लिया था हमने. सो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, उसका एल्गोरिथम दिया हुआ है ना, वो हम देख लेते हैं. ठीक है, सो नाउ द थिंग इज व्हाट, टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग, प्रोड्यूसर कंज्यूमर और बॉन्डेड बफर, हमें क्या करना पड़ता है, देयर इज वन प्रोड्यूसर. ठीक है, और एक है कंज्यूमर. ठीक है, सो नाउ बोथ आर गोइंग टू वर्क ऑन कॉमन थिंग्स, दैट इज नथिंग बट द क्रिटिकल सेक्शन, राइट? ये दोनों को क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन पे काम करना है, दैट इज नथिंग बट द कॉमन रिसोर्स. सो नाउ यहाँ पे कैसे हैंडल करना है, देन देखो, विल हैव वन म्यूटेक्स एज ए वेरिएबल. ठीक है, वन म्यूटेक्स, second one is the full and third one is empty. ठीक है, these are three variables. ठीक है, हम इसको वेरिएबल्स भी कह सकते हैं. ठीक है, वो हम यूज करने वाले. सो म्यूटेक्स को हमने क्या बताया, दैट म्यूटेक्स इज नथिंग बट द बाइनरी सेमाफोर, दैट इज नथिंग बट द लॉकिंग सिस्टम, राइट? वहां पे क्या कर रहा है, वो लॉक यूज कर रहा है, लॉक एंड अनलॉक ऐसे करेगा. सो नाउ फुल मीन्स व्हाट, फुल क्या करेगा और एम्प्टी कैसे रहेगा. सो यूजुअली व्हाट विल से, एम्प्टी इज नथिंग बट द जीरो, राइट? एम्प्टी को हम जीरो कहते हैं, बट यहां पे कैसे रहेगा, एम्प्टी इज नथिंग बट द एन, एन नंबर ऑफ बफर्स रहेंगे. तो फुल कब रहेगा, जीरो. व्हाई, बिकॉज लेट्स से विल हैव दिस वन बफर. ठीक है, इस बफर में जब भी वैल्यूज हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो इसको ऐड करने से पहले वी नीड टू चेक कि हाउ मेनी बफर्स आर देयर, राइट? अगर मेरे पास एक बफर है मेरे पास, ठीक है, तो एक बफर मैंने यूज कर लिया, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अप्लाई वेट एंड सिग्नल टू फंक्शंस, राइट? तो उसको हमने जीरो कर दिया. अगर करंट स्टेटस अगर जीरो है तो उसका मीनिंग क्या हो गया, that particular buffer is full, right? Let's see, देखो, we have seen two more things, wait function and signal function, right? So wait क्या करता है, wait is going to perform the decrement and signal is going to perform the increment operation. Fine. So let's see ये कैसे वर्क करें. So now here the first of all we need to apply the wait on empty, then we need to apply the wait on mutex, and then only we are allowed to enter into the critical section. Then उसके बाद क्या होता है, we will apply the signal on the mutex and then signal on full, right? This is the simple code. The same thing we need to perform at the consumer side. ठीक है, let's see how. देखो, so now mutex value is what, 1. So now empty means what, this particular buffer is currently available. ठीक है, this buffer is available.
तो उसको कैसे किया, विल परफॉर्म दी empty weight, right? So what is the value of empty, that is n. So here what we need to do, we need to perform the n minus 1. So let's say here we'll have currently 1, ठीक है. So weight, when we are going to perform the weight of empty, so at that time what are the values of weight and signals, sorry, empty, then full, and then mutex, राइट, 3 वेरिएबल्स. तो इनकी वैल्यूज कैसे हो जाएंगी. सो लेट्स से वी आर गोइंग टू परफॉर्म वेट ऑफ एम्प्टी. तो एम्प्टी की वैल्यू क्या है 1. सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द वेट, मीन्स वी आर गोइंग टू डिक्रीमेंट द काउंट, सो दैट इज 0, राइट. सो देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द म्यूटेक्स लॉक. सो म्यूटेक्स लॉक्स आइदर इट शुड बी 0 और 1, राइट. सो ऑलरेडी 1 है तो उसको हमने वेट किया, मीन्स व्हाट वी हैव डिक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ द म्यूटेक्स, तो ये बन गया 0, राइट. So then that particular process or producer has entered into the critical section, ठीक है, and he has access of this particular buffer. इस बफर का उनको एक्सेस मिल गया है. फाइन. So now let's say, now at this time consumer wants to consume. So what it is going to do, first you need to perform the empty of weight, so it's going to check, already it's a 0, right. तो ये काम नहीं करने वाला. Then weight of mutex, mutex is also 0, means someone is there in the critical section, right. So buffer is not accessible. So after performing this producer's work, ठीक है, critical sections, he is going to perform the signal of mutex, right. So when you going to perform signal of mutex, then what becomes 1, right. So now उसके बाद signal of full, ठीक है, तो उसको भी वो यहाँ पे 1 कर दिया उसने. फाइन. तो ये हो गया एक ही रिसोर्स के लिए, ठीक है. बट व्हाट इफ विल हैव मोर देन 1 रिसोर्सेस, मोर देन 1 रिसोर्स अगर हमारे पास रहेंगे तो कैसे होने वाला है. सो सिंपली एक ही प्रोसेस है, द प्रोड्यूसर इज अ सिंगल, एक ही प्रोसेस है प्रोड्यूसर, एंड ही हैज अ मेनी बफर्स, राइट. सो एक बफर है, और उस बफर को उन्होंने कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है. और उस पर्टिकुलर ब्लॉक्स में एक एक एक्सेस करते जाएगा वो, राइट. इज गोइंग टू एक्सेस सिंगल थिंग्स. एक बफर यूज किया तो उसने लेट से यहाँ पे पहले एक वैल्यू उसने पुट कर दी. फाइन. एक्सेस किया उसने, तो इसमें वैल्यू उसने पुट किया, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दिया. बट कैन एट द सेम टाइम दिस पर्टिकुलर फील्ड कंज्यूमर कैन एक्सेस, एंड ये जो प्रोड्यूसर है जब ये एक्सेस कर रहा है, सो एट दैट टाइम कैन ही पुट द डेटा ऑन द अदर फील्ड्स. इसको तो कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो वो करेगा क्या, राइट. सो इस बफर को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते क्या हम, इफ विल हैव दी मेनी बफर स्लॉट्स, एक स्लॉट से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये होगा क्या. यू हैव टू आंसर फॉर दैट. ठीक है. सो इन दिस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर थिंग्स, द थिंग इज व्हाट, जस्ट वी नीड टू चेक वेदर इट्स एम्प्टी और फुल. ये दो ही कंडीशन चेक करने. इट मीन्स कैसे चेक करते हैं कि स्टैक इज अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो कंडीशन जैसे चेक कर देना, उसमें सिर्फ उतना ही चेक करना है, ठीक है. सो नाउ ये हो गया. अभी यहाँ पे कैसे हो रहा है, सो लेट्स सी हियर, उन्होंने फुल को भरते गए, राइट.
फुल को प्लस प्लस करते जा रहे हैं और यहाँ पे हम एम्प्टी को निकालते जा रहे हैं, राइट। सो एम्प्टी तो अभी जीरो ही है ना, ऐसे बोलेंगे हम। तो ये कैसे क्या एंटर करेगा? बट द थिंग इज what we need to do, we need to check the first overflow and underflow conditions, राइट। अरे ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए कैसे करते हैं हम? सो ओवरफ्लो यानी कि कैसे होगा? जब आपका ये फुल रहेगा। अंडरफ्लो कैसे रहेगा? जब उसका एम्प्टी रहेगा, राइट। ये कंडीशन ही चेक करके ये पूरा वर्क होने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सिंपल कॉन्सेप्ट। सो दिस इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर और बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, जिसको हम